students. Welcome to physics class. So the topic of today's lecture is measuring instrument. हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1.6 जो measuring instrument है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे what are the measuring instruments, and then we will see the explanation of length measuring instrument, in which we will discuss about the meter ruler, measuring tape, and then the most important is vernier caliper. Okay, so let's start. So first of all, we should know what is measuring instrument. As we know that what are physical quantities? Remember from the definition from very first lectures that measuring physical quantities are all those quantities which can be measured. ओके जिनको आप measure कर सकते हो, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. अब जिनको आप measure कर सकते हो वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. तो उनको measure करने के लिए डेफिनेटली हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे हम उनको measure कर सकते हों. तो measuring instrument that are used to measure various physical quantities are called measuring instruments. Okay, for example, to measure a length we required this ruler or a meter, this measuring tape or a vernier caliper, screw gauge. Similarly, to measure the mass we need some mass measuring instruments, or volume measuring instrument are used to measure the volume. Time measuring instruments are used to measure the time. So there are a lot of instruments that have their specific purpose to measure a specific physical quantity. Okay, so in physical sciences, quality assurance and engineering measurement is activity of obtaining and comparing physical quantity of a real world objects and इवेंट्स. सो इसके मुताबिक आपके पास जो मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी भी इंजीनियरिंग मेजरमेंट कर रहे होते हो, या फिर आपके पास कोई भी क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, यानी आपने जब चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो तब आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है. अगर डेली लाइफ में आप देखें तो हमें मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. हम टाइम को अपनी क्लॉक के ज़रिए मेजर कर रहे हैं. इसी तरह हम जब ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो हम ग्रॉसरी स्टोर में हमें मैस मेजर करने को मिलता है. इसी तरह हम लेंथ को बहुत, जब हम कपड़े वगैरह अपने सिलवाते हैं तो हम लेंथ अपनी मेजर कर रहे होते हैं. तो ये मेजरिंग तो हमारी डेली लाइफ के साथ है, और इसमें बेहतर मेजरमेंट होगी तो आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस होगी कि आप ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट कर सकते हो. नाउ let's come to the point, length measuring instruments. Now the first length measuring instrument is a meter ruler. A meter ruler is a length measuring instrument. It is used in laboratories to measure the length or a distance between any two points. So it is its construction is very simple. आपके पास एक मीटर रूलर जो ये प्लास्टिक का या वुड का हो सकता है, या इवन स्टील का भी हो सकता है. तो ये मटेरियल कोई भी हो सकता है. उसके ऊपर ये स्केल एक इनग्रेव हुआ होता है. अगर आप इसको गौर से देखें तो ये मेरे पास एक शॉर्ट वर्जन है. बेसिकली मीटर रूलर का एक स्मॉलर वर्जन यहाँ पे गिवन है. तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है, ये जो टोटल है ये 1 मीटर है, और हर मीटर, इस 1 मीटर में 100 इक्वल डिवीजन्स होती हैं. देयर आर 100 इक्वल डिवीजन्स. नाउ यू कैन सी 0 और 1. ये जो आपके पास 0 और 1 है, फिर 1 और 2 है, 2 और 3 है. ये आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल है. सो अप टू 100 डिवीजन्स. यहाँ पे मैंने जो फिगर में शो किया वो 12 डिवीजन्स तक है, लेकिन जो असल मीटर रूलर होता है इट इज़ अप टू 100 सेंटीमीटर्स की डिवीजन तक वो होता है. ठीक है, ये मैंने थोड़ा इन लार्ज व्यू आपको दिखाया हुआ है. सो 0 to 1, 1 to 2. सो 0 to 1, this length is called 1 centimeter. Okay, up from 0 to 1. So this length is called 1 centimeter. Is it clear? Now this centimeter is further divided into 10 equal parts, and each part is called 1 millimeter. Now you can see I mark over here. You can see मैंने इसको फिल कर दिया है यहाँ पे. तो this length is called 1 millimeter. This length is called 1 millimeter. So it's mean that each centimeter is, centi means, you know from the prefixes that centi is 10 raised to power minus 2 and milli is 10 raised to power minus 3. Means when you divide
a centi with 10 you got 1 millimeter. Okay, so if we are measuring length, so if we are dividing 1 centimeter into 10 equal parts, then we got 1 millimeter. Okay, so each part is called 1 millimeter. Now you can see that in this scale from 0 to 1 it is 1 centimeter, and this 1 centimeter is further divided into 10 equal parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. You see there are 10 equal parts, so each part is called 1 millimeter. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस मीटर रूलर से जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकते हो किसी भी चीज़ की वो 1 मिलीमीटर तक ले सकते हो. ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या कहा, द लीस्ट काउंट ऑफ 1 मीटर रूलर इज 1 मिलीमीटर. तो यहाँ पे आपने जहन में रखना है लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मैयर. सो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक मीटर रूलर से कितना बच्चों मैयर कर सकते हो, 1 मिलीमीटर का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. इससे स्मॉलेस्ट लेंथ आप नहीं मैयर कर सकते. ठीक है, तो अब मैयरिंग का तरीका क्या है, मैं आपके सामने यहाँ पे ये डायग्राम में आप देखें, आपके पास यू हैव अ पेपर पिन एंड यू वांट टू मैयर इट्स लेंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेपर पिन का एक एंड बिल्कुल इसके जीरो के बराबर रखना है. रिमेंबर, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. ओके, रेफरेंस पॉइंट, योर रेफरेंस पॉइंट शुड बी फ्रॉम द जीरो. सो जब मैंने इसको जीरो पे रखा तो मैंने देखा कि बिल्कुल इसको आपने स्ट्रेट रखना है और देखना है कि इसका ये सेकंड पॉइंट कौन सी रीडिंग पे एंड हो रहा है. नाउ यू कैन सी इफ आई कैन मार्क इट लाइक दिस इज, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो अब आपने इस वैल्यू को देखना है. नाउ यू कैन सी दैट 1, ये इसने 1 क्रॉस किया, 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8. So these readings are 1.8 सेंटीमीटर. तो ये टोटल कितनी है, ये 1 है. 1 के बाद आपने ये जो पॉइंट्स में देखनी है रीडिंग, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा. 2 के बाद ये 2.1, 2.2, फिर 3 के बाद 3.1, 3.2, इस तरीके से रीडिंग्स होती हैं बच्चों. ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देखें 0 से स्टार्ट किया और ये इसकी लेंथ कहाँ तक जा रही है, 1.8 तक. तो इसका मतलब इस पेपर क्लिप की लेंथ कितनी होगी बच्चों, 1.8 सेंटीमीटर हो गई है. और अगर मिलीमीटर्स में आप देखते हो तो ये टोटल रीडिंग्स आपके पास 18 आ रही हैं. अगर आप यहाँ पे बच्चे देखो ना, ये 1 2 3 4 ये 10 रीडिंग्स होंगी, 11 12 13 ये 15 हो गई, 16 17 और 18. टोटल रीडिंग्स 18 हैं. अगर ये स्मॉल रीडिंग्स को काउंट करते हो तो ये मिलीमीटर्स में, और अगर ये लार्जर रीडिंग के साथ स्मॉल रीडिंग्स को मिला के करते हो तो ये सेंटीमीटर्स में आप मैयर कर रहे हो. तो इस चीज़ का ख्याल रखना है. इसी तरीके से आप अगर अपनी पेंसिल की लेंथ को मैयर करना चाह रहे हो तो उसको आपने कैसे मैयर करना है कि इसकी जो टिप है आपकी पेंसिल की टिप वो आपने बिल्कुल जीरो पे रखनी है और देखना है कि इसका जो दूसरा एंड है वो कहाँ पर जा रहा है. तो अगर आप देखें ना तो ये 7 रीडिंग को क्रॉस कर रहा है और 7 के बाद ये 5 मोर रीडिंग्स ले रहा है, तो 7.5 बन जाएगा ये. ठीक है, तो इट इज़ 7.5. और टोटल अगर ये स्मॉल रीडिंग्स आप काउंट करो तो ये 75 रीडिंग्स बनती हैं. तो आपने बस इसको इतनी ज़्यादा रीडिंग्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. आपने देखना है कि ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है. ठीक है, ये बड़ा पॉइंट जो है ये 7 आ रहा है. 7 के बाद आपने रीडिंग्स काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5. तो ये आपके पास 7.5 तक आ रहा है. और 7.5 को सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करो तो 75 आ जाता है, वो मिलीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो. इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर अ लेंथ बाय यूजिंग अ मीटर रूलर. नाउ there are some precautions over here while measuring the length distance. I must be kept vertically above the reading point. आपकी रीडिंग पॉइंट पे जो वैल्यू है, जो आपकी आंख है जहाँ पे आप मेजर करें, इट शुड बी ऑन द अबव द वैल्यू. जहाँ जैसे आप ऐसे हाथ में लेके मेजर करें तो आपने नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ देखना है और रूलर को बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है. तो करेक्ट पोजीशन इज look at the above, not from the left side, not from the right side. So this is the precaution of using a meter ruler. आप कोई भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, इवन वॉल्यूम जो आप मेजरिंग सिलेंडर है, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और जहाँ पर आपको एक रीडिंग स्पेसिफिक बिल्कुल उसके ऊपर से देखनी होती है, ना कि आप लेफ्ट या राइट साइड से रीडिंग को नोट करोगे. सो करेक्ट पोजीशन इज टू लुक एट द टॉप, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड. लेफ्ट एंड राइट साइड से देखोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा. सो दिस इज वन ऑफ द प्रिकॉशन यू मस्ट रिमेंबर. नाउ लेट्स कम टू द measuring tape.
अब मेजरिंग टेप भी एक बड़ा वर्जन है मीटर रूलर का। बाज़ औक़ात मीटर रूलर अब इतना बड़ा रॉड है कि आप उसको हर जगह लेकर नहीं जा सकते, तो मेजरिंग टेप हमें क्या फैसिलिटी देती है कि ये फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होके तो एक कॉम्पैक्ट सी फॉर्म में आ जाती है जिसको आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो। लेकिन इसके अंदर ये रूलर होता है जो कि मीटर्स और सेंटीमीटर्स में और इंचज़ में भी मेजर कर सकता है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 10 मीटर की भी होती है, 20 मीटर, 50 मीटर, इवन 100 मीटर लॉन्ग। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो अगर यूज़ कर रहे हैं बड़े प्लॉट को मैयर करना है तो वो मीटर रूलर से तो नहीं मैयर करेंगे क्योंकि वो लेंथ बहुत बड़ी होती है। तो उसके लिए फिर ये बड़ी मैयरिंग टेप्स जो कि कॉटन की बनी है, नहीं कपड़े की बनी होती हैं, ये जो आपके पास स्ट्रिप है मोस्टली या तो कॉटन की होती है या फिर ये प्लास्टिक या मेटल की बनी होती हैं। तो जो छोटी लेंथ्स है ना, जैसे यहाँ पर ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये इसके ऊपर लिखा हुआ 8m26 फीट, तो इसका मतलब इट कैन मैयर अप टू 8 मीटर 26 ये फीट है, ठीक है, इंचज़ नहीं है। यहाँ पे ये आपने करेक्शन कर लेनी है, दिस इज़ नॉट इंचज़, दिस इज़ फीट, ओके। ये आपके पास फीट में यानी फुट जो इसको आप कहते हो, ठीक है, तो ये उसमें मैयर करता है, ओके। तो ये आपके पास यू कैन सी इट कैन मैयर अप टू 8 मीटर्स। सो लेकिन आपके पास ये छोटा मीटर मैयरिंग टेप है, बड़ी भी होती हैं जो कि 100 मीटर्स तक भी मैयर कर सकती है। अब 100 मीटर तक मैयर करना है तो आप इजीली एक बड़े प्लॉट की रीडिंग एक ही बार में ले सकते हो जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इज इट क्लियर? सिमिलरली आपके पास ये एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि 5 मीटर तक मैयर कर सकता है, तो ये डिफरेंट रेंजेस में आती हैं। इनका स्केलिंग बिल्कुल वैसे जैसे मीटर रूलर की होती है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बड़ी रीडिंग्स हैं ये आपके पास सेंटीमीटर्स में होती हैं और यहाँ पे ये इंचज़ में भी रीडिंग्स गिवन होती हैं, यानी इसमें मल्टीपल स्केल्स होते हैं, मल्टीपल यूनिट्स में ये कैलिब्रेट हुआ होता है। आप इसको सेंटीमीटर्स में भी रीडिंग ले सकते हो, मीटर्स में भी ले सकते हो और मिलीमीटर्स में ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये इसकी यूनिट्स वगैरह डिवीजन तो मौजूद होती हैं, तो आप इसमें इंचज़ और फीट्स में भी ले सकते हो। तो ये एक वर्सटाइल जो कि प्रैक्टिकली जो से ब्लैक स्मिथ होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं या ऐसे लोग जिन्होंने मेजरमेंट के साथ काम करना होता है, मोस्टली वो लोग मेजरिंग टेप यूज़ कर रहे होते हैं।